tangents and normals. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का क्या काम है? We shall use differentiation to find the equations of tangent and normal to a curve at a given point. Normal पता है ना तुम्हें क्या होता है? Normal to a curve at a point. Normal to a curve at a point is a line which is perpendicular to the tangent at that point. मतलब अगर ये tangent है और ये normal है, इस point पे P पे है दोनों. The tangent is also at point P to the curve and the normal is also at point P. Tangent is a straight line touching the curve at only a single point. Just touching a point, not intersecting. So tangent to a curve is very similar to tangent to a circle. But it's a straight line. Normal is also a straight line. Normal and tangent are related to each other in a sense that they are both perpendicular to each other at the point of contact. What is the point of contact? At which the tangent touches the curve. ठीक है, मतलब P पे ये दोनों tangent और normal perpendicular. So we have to use differentiation to find the equations of these two. That is the normal and the tangent to a curve at a given point. Point पता होना चाहिए, कर्व का इक्वेशन पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का यूज हो सकता है इसमें. सो सपोज एक कर्व है एफ ऑफ एक्स और एक टेंजेंट है के पी टी एट पॉइंट पी एक्स डैश वाई डैश जिसके कोऑर्डिनेट्स है, और एंगल विच दिस टेंजेंट इज मेकिंग विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज दिस. ये सिंबल को क्या बोलते हैं? साई ना, साई, PSI, psi. Since dy by dx is equal to slope of the tangent at any point, we already know slope of a point का जो formula है, that is dy by dx, but that is what slope of a tangent to the curve at a point, उसका formula है. So dy by dx at p is equal to tan psi, which is also called gradient. So m is equal to tan psi, which is dy by dx of this curve at point P. तो हमें स्लोप मिल गया टेंजेंट का, हमें इक्वेशन बनाना है. सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म को हमने यूज कर दिया. स्लोप पॉइंट फॉर्म तुम्हें याद होगा, y माइनस, हाँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1. स्लोप पॉइंट फॉर्म ये हमने 11th में पढ़ा था और तुमने 10th में भी पढ़ा. ठीक है, यस, ये स्लोप है, ये x माइनस x1 है, ये y माइनस y1 है. इसको अगर वैल्यूज डाल दोगे तुम, किसकी वैल्यू डालनी है? y डैश की, x डैश की और स्लोप की. x और y एज इट इज रहेगा, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, अच्छा. If slope of the tangent is known to you, you can easily find the slope of the normal, which is negative reciprocal of the slope of the tangent because they are perpendicular to each other. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी बना सकते हो. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, सो P is the point of contact and this is the equation of normal. Particular cases, when the tangent is parallel to x axis, उसका एक इक्वेशन किस फॉर्म में होगा? उसका इक्वेशन होगा, जो भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का खुद का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0. तो इसका इक्वेशन होगा ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू c. y इज इक्वल टू c. व्हाट इज c? c इज द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस. मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से या एक्स एक्सिस से कितना है? वो c है. और इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू c. ठीक है, इसमें एक बात याद रखना, साई 0 है तो tan साई भी 0 होगा, तो dy by dx भी 0 होगा, तो y इज इक्वल टू y डैश. दैट इज द इक्वेशन
of the tangent at x dash y dash. This y dash is nothing but that c, which I was talking about. Case 2 is when the tangent is perpendicular. When the tangent is perpendicular to the x-axis. इस केस में psi is plus minus pi by 2 depending upon the position of the tangent, first quadrant, second quadrant. So cot psi is 0. So dx by dy is 0. You see what they are doing? Dx by dy they have written because tan psi is dy by dx. So reciprocal of tan psi is dx by dy, which is cot psi, which is 0. So the equation of the tangent is x is equal to x dash. We know that the equation of y-axis is x is equal to 0. So equation of any line parallel to y-axis is x is equal to c, where this distance between the lines is c. ठीक है, सो ये इक्वेशन पर्टिकुलर केसेस हो गए. तरीका है मेरे पास, जस्ट वेट. इंटरनेट नहीं है ना. मैं क्या बोल रहा था? y एक्सिस का इक्वेशन बता रहा था मैं, राइट? x is equal to 0. So any line which is parallel to y axis has an equation x is equal to c, where this distance is c. So that's what they mean. अच्छा, ये जो बोला है the equation of the tangent at x dash y dash, वो x dash y dash ये है, ये पॉइंट, ठीक है? x dash y dash, ये x dash ही c है. अगर टेंजेंट यहां पे बनाओगे इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका सब कुछ चेंज हो गया. उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, उसका एंगल चेंज हो गया, पॉइंट चेंज हो गया जिस पे हम इक्वेशन बना रहे हैं. सो कर्व के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अलग होता है, टेंजेंट का इक्वेशन भी अलग होता है, सब कुछ अलग होगा. ऑफ कोर्स स्लो होगा, स्लोप अलग ही होगा. देखो ना, इसका स्लोप कितना है? इनफाइनाइट है. इसका स्लोप इनफाइनाइट नहीं है. इसका स्लोप देखो नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है. यस, बाकी दोनों में नॉर्मल इक्वेशन बनेगा टेंजेंट का, इसमें नहीं बनेगा. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. तो डिफरेंशिएशन का क्या यूज है यहां पे, तो तुम्हें समझ में आ गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाने के लिए हमें डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व एट द पॉइंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, उसको फिर ये फॉर्मूला में डाल के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं. ठीक है, और स्पेशल केसेस भी समझ में आ गए. नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स. The angle of intersection between two curves is the angle between the tangents to the two curves at their point of intersection. ये दो कर्व्स है C1 और C2. C1 और C2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे. तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन कर्व C1 एंड C2 इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैंने दोनों कर्व के टेंजेंट बना दिए तो वो भी इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे, क्योंकि टेंजेंट इज ड्रॉन ओनली एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ देयर टेंजेंट्स, रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स at the point of contact, and the angle between these tangents is theta. So the angle of intersection between two curves is theta. To find the angle of intersection of two curves C1 and C2, पहले तो हम लोग दोनों टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे. What is the slope of tangent T1?
tan psi 1. And what about the slope of tangent T2 or PT2? Tan psi 2. Tan psi 2. Yes. So you can apply trigonometry and tan of obtuse angle तुम निकाल सकते हो. एक्सटीरियर कौन सा किसकी किसकी बात कर रहे हो? Exactly. Yes, yes, absolutely. You are correct. Psi 1 is equal to theta plus psi 2. So theta is equal to psi 1 minus psi 2. बिल्कुल सही है, यही है. So tan theta, अगर तुम्हें theta नहीं पता है तुम्हें, तो you can find it as tan of psi 1 minus psi 2. This will be useful. This will be useful because tan of psi 1 minus psi 2 में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan of a minus b, which is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. ठीक है. tan psi 1 and tan psi 2 ऑलरेडी हमें पता है. ठीक है, क्योंकि हमें psi 1 और psi 2 पता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं. ठीक है. dy by dx of c1 minus dy by dx of c2 upon 1 plus dy by dx c1 into dy by dx c2. सो tan थीटा का फॉर्मूला निकाला. साई 1 साई 2 नहीं भी पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफरेंशिएशन यूज करो. पता है तो डायरेक्टली tan थीटा मिल जाएगा. डिफरेंशिएशन कर्व का है, कर्व के इक्वेशन का है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. सो यू कैन फाइंड tan थीटा लाइक दिस, बट tan थीटा इज नॉट द आइडिया. व्हाट वी हैव टू फाइंड एक्चुअली? थीटा ना. वी हैव टू फाइंड थीटा. करेक्ट. So tan theta के बाद you have to find theta as tan inverse of that value. So you will get theta. The other angle between the tangents is 180 minus theta. Other angle मतलब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? Other angle between the tangents मतलब ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं. This is how much? 180 minus theta. Other angle between the curves is also 180 minus theta. ठीक है. एनी वन ऑफ द एंगल यू कैन फाइंड, थीटा और 180 माइनस थीटा. जनरली द स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. तो तुम ये पता लगा लो कि स्मॉलर कौन सा है, फिर वो वैल्यू एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स या फिर एंगल बिटवीन द टू कर्व्स होगा. ठीक है, ये भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्थोगोनल कर्व्स, जो कर्व्स के बीच का एंगल राइट एंगल होता है, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स theta is 90 degree, the curves are said to be orthogonal curves. Here theta is pi by 2. If theta is pi by 2, then the product of the slope of these two tangents will be minus 1. That means dy by dx c1 times dy by dx c2 will be minus 1. ये तुम्हें याद रखना है. नीचे मतलब करेक्ट. tan थीटा इनफाइनाइट होगा? नहीं 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 नहीं, यू आर मिस्टेकन. थीटा here is not the angle made by the tangent with the x-axis. Theta is the angle made between two tangents, between two curves. That angle which you are talking about is psi in their language up to now. ये वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहे हो, ये वाला. ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये पूरे इक्वेशन की. हाँ करेक्ट. -1 होगा. एग्जैक्टली राइट रिलेशन. मतलब वो नीचे का 1 प्लस के बाद वाला जो टर्म है वो -1 होगा. वही ये चीज है. यही बोल रहे हो ना तुम?
that is this denominator. Correct, you can tell like that. ठीक है, बट उसमें वो जो फॉर्मूला था उसमें हमें एंगल ढूंढना था, इसमें हमें एंगल ऑलरेडी पता है. सो वी विल यूज दिस रिलेशन इन सम इक्वेशन, सम क्वेश्चन. ठीक है, इतना ही है. नोट कर लो, कर लो, फॉर्मूले काम आएंगे. शुड आई स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर अ मोमेंट? पॉज कर देता हूं. फर्स्ट क्वेश्चन, find the slope of the tangent to the curve x is equal to at square comma y is equal to 2at at t is equal to 2. पहले तो ये जो कर्व दिया है इसमें x की एक वैल्यू दी है और y की एक वैल्यू दी है और बोला है एट t इज इक्वल टू 2. जनरली व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, एक्चुअली एक ही कर्व है बट इसका फॉर्मेट t के फॉर्म में और x और y की वैल्यूज दी है. बट मेरे को बताओ, x की वैल्यू को डिफरेंशिएट कर रहे हो तुम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो तुम्हें मिलेगा dx by dt और फिर dy by dt एंड देन यू विल गेट dy by dx. समझ गया मैं तुम जो बोल रहे हो, एक टाइप था. करेक्ट, लेट्स डू इट. बताता हूँ कैसे. सी, पहले x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर है, so we'll differentiate both the sides with respect to t. So dx by dt is equal to d by dt of at square, which is a बाहर आ जाएगा और t square का differentiation 2t, so 2at, and y is equal to 2at, so dy by dt is equal to d by dt of 2at, which is 2a. ठीक है, नथिंग बट 2a. सो नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. dy by dx is dy by dt अपॉन dx by dt. नाम याद रखना जरूरी है लेकिन, तो था पता नहीं. सो dy by dt is 2a upon dx by dt is 2at. So we get 1 by t, which is the value of t is 2, so 1 by 2. so स्लोप आ गया 1 by 2 और थीटा भी निकाल सकते हैं इससे, tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 वॉट एवर इट इज, if you want, if they want. Find the slope of the tangent, that's it. Yes, x axis के साथ. so slope is equal to 1 by 2. सही है. हाँ हाँ श्योर. Done. Find the point at which tangent to the curve has its slope 2 by 3. तो dy by dx की वैल्यू दी है 2 by 3, पहले dy by dx निकाल लेंगे. dy by dx is equal to d by dx of root of 4x minus 3. -1, हाँ रूट के बाहर है ये.
ठीक है, सो दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ 4x माइनस 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1. You have to apply chain rule, right? So tell me the answer. 4/2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 4x, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट 4x माइनस 3 आएगा, और फिर 4x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3. सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन बताओ. 1/2 नीचे अंडर रूट 4x माइनस 3 इंटू 4, मतलब 4 बाय, मतलब वो 4 कट होगा ना. माइनस 0, दैट इज dy by dx 2/3 इज इक्वल टू 2 बाय रूट ऑफ 4x माइनस 3. इसको सॉल्व करना है. वी हैव टू फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व, x और y की वैल्यू एग्जैक्टली. ये ट्रू तो कट होने वाला है. ये 3 की वैल्यू यहां पे डाल दी. -1. सो पॉइंट क्या है? 3,2. ठीक है, चलो नेक्स्ट. Find the equation of all lines having slope 2 and being tangents to the curve y is equal to, sorry, being tangents to the curve y plus 2 by x minus 3 is equal to 0. Find equation of, हाँ dy by dx तो 2 है, dy by dx तो 2 है, and being tangents to this curve, so y is equal to minus 2 by x minus 3. ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स. और अब क्या ढूंढेंगे? dy by dx, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है. सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ 2/3 माइनस एक्स. डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे 2 डाल दो.
1/3 माइनस एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा. Is there any exponential or logarithmic differentiation involved for this because it's reciprocal? सर मैंने तो डिवीजन I think क्या I think नहीं, चेन रूल से होगा. शेड्यूल में वो लास्ट में क्वेश्चन वो कॉनिक्स का पहले क्वेश्चन Are you sure quotient या फिर logarithmic? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं, क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, सर वो दोनों को ऐसे में सोच लो कि एक ऊपर वाला फंक्शन है नीचे वाला देख ये तो हो जाएगा 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3x 3 माइनस एक्स. सही है ना? हाँ, तो अब इसको थोड़ी क्वोशंट रूल कर सकते हैं हम लोग, इसको तो इससे करना पड़ेगा. हो जाता है मतलब 1/h of x का डिफरेंशिएशन था -1 अपॉन आर यू श्योर? ये आइडेंटिटी सही है या नहीं? सर ये उल्टा कि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा तो मेरे को अभी सर d/dx of log x is equal to 1/x. आर यू श्योर? हाँ सर आर यू श्योर? आर यू पॉजिटिव अबाउट दिस? d/dx of log x is equal to 1/x. हाँ सर इंटीग्रेशन में थोड़ा ठीक है, तो इसका कितना आया तुमको फाइनल आंसर? ये 2 तो कट होएगा इसके साथ. पूरा सिंपलीफाई हाँ, पूरा सिंप्लीफाई हो. x minus 3 the whole square is equal to 1. So x minus 3 is equal to plus minus 1. ठीक है? That implies that x is equal to 3 plus 1 or x is equal to 3 minus 1. है कि नहीं? So x is equal to 4 or x is equal to 2. These are both the lines which being tangent to this curve has the slope 2 according to you. I still am confused. ठीक है, देखते हैं, आंसर तो मिल ही जाएगा अभी. देख ले आंसर. सही है, तो ये मैंने उल्टा लिखा है, इसको अभी करेक्ट कर देते हैं, नहीं तो आगे यही कंटिन्यू होगा. मुझे भी इंटीग्रेशन चल रहा है मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं. डी बाई डी एक्स ऑफ log of x to the base e is 1/x. साइन ऑफ cos का बेसिस हुआ था वो भी एक मिस्टेक हम्म. अभी इसमें वाला इंटीग्रेशन of 1/x का हो जाएगा ना log x Exact. हाँ, तुमने ही तो बोला पहले क्वोशंट रूल फिर चेन रूल. जो नॉर्मल तुम्हारा 3 माइनस एक्स को रेस टू -1 करके लिख दे, फिर सॉल्व कर ले उसको अंदर. ओके, संभाल के, वायर है, आराम से. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अच्छा, ये भी ढूंढना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 4 y इज -2. बट ऐसा पूछा तो नहीं है. ओह, द क्वेश्चन डजंट एंड देयर. हमने सिर्फ x की वैल्यू ढूंढ के छोड़ दिया. Thus there are two tangents to the curve with the slope 2 and passing through 2, 2 and 4, -2. ये पॉइंट्स कहाँ से मिले पता है? x की जो दो वैल्यू थी, हमने वो इक्वेशन ऑफ दैट स्लोप में डाल के y की दो वैल्यू निकाली. x जब 2 था तो y भी 2 था और x जब 4 था तो y -2 था. प्लीज ये लिख लो.
So we got two sets of points. One is 2 comma 2, means that tangent is passing through point 2 comma 2, and another is 4 comma minus 2. The curve is passing through these 2 points, and there are two tangents at these 2 points whose slope is 2. So what are the equation of the tangents now? उसके बाद टेंजेंट का भी स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप नहीं, सिर्फ इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे किया है देखो। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट थ्रू 2 comma 2, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट का ही फॉर्मूला यूज किया है। यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, y minus y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x minus x1। m क्या लिया है? 2, और y1 और x1 भी 2 लिया है। इससे एक इक्वेशन बना, और सेकेंड इक्वेशन वही फॉर्मूला से, सिर्फ y1 और x1 की वैल्यू चेंज हो गई। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टू टेंजेंट्स। एक्चुअली हमने क्या किया था कि वो जो दो में x की वैल्यूज मिली थी, x इज इक्वल टू 2 and 4, हमने उसी को इक्वेशन मान लिया था। बट वो तो सिर्फ पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है एट विच दैट कर्व इज पासिंग। फिर हमने y कोऑर्डिनेट भी ढूंढा। कैसे? हमने वो जो टेंजेंट का इक्वेशन था ना, उसमें x की दोनों वैल्यू डाल के दोनों रिस्पेक्टिव y कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लिए। फिर क्या किया? फिर हमने ये पता लगाया कि टेंजेंट ये दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब टेंजेंट इस दो पॉइंट से पास हो रहा है, टेंजेंट का स्लोप पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन बना सकते हैं ना स्लोप पॉइंट फॉर्म से। तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकाल। यस। हाँ, तो उस कर्व पे ये दो अलग अलग पॉइंट है, उसमें दो अलग अलग टेंजेंट्स है, दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है, बट दोनों अलग अलग पॉइंट पे कर्व पे, और दोनों का इक्वेशन है। हाँ, ये तो दिया था क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 having and being tangents to the curve. पैरेलल होंगे, सेम स्लोप मतलब पैरेलल लाइंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of the tangent to the curve y is equal to a big value which is simplified in brackets. If you see, they have multiplied the denominator, the binomials in the bracket, and simplified. At the point where it cuts x-axis, where what cuts x-axis? The curve. If the curve is cutting x-axis, what will be the value of y? So what will be the value of x? You can look at the equation and find. Tell me. No, don't do anything. Tell me orally. y0 है 7. मतलब the point at which the tangent is cutting x-axis is
7,0। ठीक है, मतलब तुम्हें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 7,0 ढूंढना है। तो मतलब पहले y को डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकाल लो, और हाँ, और उसमें उसमें x की जगह 7 डाल दो, तो तुम्हें स्लोप मिल जाएगा टेंजेंट का। स्लोप मिलने के बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म में पॉइंट्स को 7,0 ले लो, तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा। कैन यू डू इट? सिर्फ डिफरेंशिएशन है यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी, बिकॉज यू हैव टू यूज चेन रूल। नो चेन रूल, कोशंट रूल। कोशंट रूल से हो जाएगा काम। यस, कैन सी।
डिफरेंशिएशन चेक करो dy by dx सर ये फाइनल आंसर ही चेक एक करो। मिनट सर स्लोप सही है, वही इक्वेशन सही dy by dx सही है फाइनल ये वैल्यूज डालने के बाद और इक्वेशन भी सही तुम्हारा है। सर इसका स्लोप तो सही है। स्लोप सही है 1/20 इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म्स है ध्रुव ठीक है ना शैल वी गो अहेड सर टोटल कितना 16 पूछे? हाँ आगे थोड़े से है लंबे क्वेश्चन है find the equation of the tangent and the normal to the curve 16x square plus 9y square is equal to 145 at the points x1 y1 where x1 is equal to 2 and y1 is greater than 0 देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल ढूंढना है कर्व का इक्वेशन भी हमें पता है तो पहले ये कर्व के इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके y के टर्म्स में लाना पड़ेगा y के टर्म्स में लाने के बाद dy by dx एंड -1 dy by dx हाँ वो नॉर्मल है। हाँ बिना करे भी हो जाएगा यू आर राइट क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन उससे भी हो जाएगा हाँ फिर पॉइंट का जब सवाल आता है तो अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एटलीस्ट वी कैन फाइंड dy by dx एंड -1 dy by dx फिर पॉइंट का हम लोग सोचते हैं CBSE 2018 सर y ग्रेटर देन 0 फिर भी अपने को x नहीं आंसर आ रहा है, x1 ही आंसर नहीं, बट यहाँ पर x1 है तो फिर हम वैल्यू हमें इसका मतलब तुम देख रहे हो x1 तो पॉजिटिव है ही y1 भी पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा एक्यूट एंगल होगा ये बोल रहे लोग यू सी दैट क्योंकि वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है अब एट द पॉइंट बोला है हाँ बोल कर सकते हैं यस हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे नेगेटिव को ओमिट कर देंगे यू आर राइट सो आई थिंक डिफरेंशिएशन करके डिफरेंशिएशन होके वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है -16x/9y डालना पड़ेगा वैल्यू x की जगह 2 डालना पड़ेगा डिफरेंशिएट करने के बाद I think you don't find the value of -1 dy by dx. First find dy by dx. स्लोप नेगेटिव मतलब
It's possible there are two values. मतलब दो वैल्यूज तो आ रही है भाई, प्लस माइनस। तो दोनों, हाँ, तो एक पे पॉजिटिव होगा, एक पे नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है, क्या वैल्यू है स्लोप की? -32 दैट इज व्हेन y इज ग्रेटर देन 0, y1। कौन सी है वैल्यू y की? और x की जब 2 है, y की 3 है, और स्लोप कितना है? -32 पॉसिबल। तो y की दूसरी वैल्यू पे स्लोप, x की जब y की 0 -3 होता है। ओके, तो तुमने -3 को ओमिट किया, सही है। ठीक है, अब इक्वेशन तो निकल जाएंगे आराम से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो y की वैल्यू मुझे x की वैल्यू डालनी है। यस, x की वैल्यू 2 डालनी है, और y की तुम्हें जो दो वैल्यू मिलेगी ना, उसमें से नेगेटिव वैल्यू को ओमिट करना, पॉजिटिव वैल्यू लेना। सर बट स्लोप तो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव तो नेगेटिव सही है ना, -32/27। तो मुझे लगता है नेगेटिव y की वैल्यू पे पॉजिटिव आता था स्लोप, वो माइनस क्योंकि स्लोप हैज नॉट नथिंग टू डू विद द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट, इट हैज टू डू विद द ओरिएंटेशन ऑफ द टेंजेंट, whether it is making obtuse angle or acute angle with x-axis. Check the equation of the tangent. अच्छा, और नॉर्मल, नॉर्मल का एक स्लोप होगा 27/32, है ना, और इक्वेशन इसी तरीके से, पॉइंट तो वही है, 2,3, 2,3। हाँ, यस, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। ध्रुव, टेंजेंट वाला आया इक्वेशन, स्लोप आया, देख ले फिर। नॉर्मल का, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। वो y इज ग्रेटर देन 0 सिर्फ कंफ्यूजन ही था, और कुछ, हाँ, बाकी कुछ नहीं था। Find the equations of the tangent and normal to the curve given by x is equal to a sine cube theta, y is equal to a cos cube theta at a point where theta is pi/4। तो थीटा भी रिस्पेक्ट में सेम थिंग जो पहले इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट जो भी था, वो dx/d theta, dy/d theta, then dy/dx। हाँ, यहाँ चेन रूल होगा।
मिल जाएगी ना, पाई बाय 4 डालना इसमें। साइन क्यूब पाई बाय 4, पाई बाय 4 इज 1/√2, 1/√2 का क्यूब 1/2√2, मतलब a/2√2, दोनों में वही आएगा x और y, a/2√2। dy/dx माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा आया, और उसकी वैल्यू -1 है। यू आर राइट, x इज इक्वल टू y या x माइनस y इज 0। यस, वो नॉर्मल का है, ये है तुम्हारे टेंजेंट का, x प्लस वाई इज इक्वल टू a/√2। यू आर राइट। ऊपर वाला, हाँ, थीटा का वैल्यू π/4 क्वेश्चन में ही दिया था। सो इफ यू पुट द वैल्यू π/4 यू फाइंड dy/dx, slope of tangent and slope of normal as 1, -1 and 1, and then you find the points by putting the value of theta π/4 x and y, and then you find equation of tangents and normal. डिफरेंशिएशन सही है, वैल्यू सही आया dy/dx का, स्लोप ऑफ टेंजेंट वही है dy/dx, और -1 अपॉन dy/dx हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल विच इज 1। अब थीटा का वैल्यू डाला, x किस में, इसमें डाला थीटा का वैल्यू x में और y में, तो a/2√2 आया, x और y दोनों, x और y a/2√2 आया, बस अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट में जा रहा हूँ मैं। Find the equations of tangent and the normal to the curve x is equal to 1 minus cos theta, comma y is equal to theta minus sin theta at theta is equal to π/4। करेक्ट, सेम है, सेम ही है ये, सिमिलर क्वेश्चन। वो भी 2010 था ना वो वाला, इससे पहले वाला नहीं 14 था। जनरली क्या होता है पता है, सीबीएसई के वो अलग अलग होते हैं ना, दिल्ली, ऑल इंडिया, ये वो, तो उसके क्वेश्चन तुम देखोगे एग्जैक्टली सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं। सो दीज टू क्वेश्चंस वर वेरी सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, तो ऐसा करते हैं ये लोग, बट दीज आर एनीवेज डिफरेंट ईयर्स। इसमें ये फायदा है दैट जो जितने भी क्वेश्चन है ना वो पास्ट ईयर्स है, तो वी ऑलरेडी नो दैट कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी आर नॉट ओनली डूइंग एनसीईआरटी और समथिंग, पास्ट ईयर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऑल वेराइटी है सब, बट मोस्टली इजी है। जस्ट इमेजिन अगर बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोर्ड में कैसा होता है रेशियो, कि तुम्हारा 85% जितना एनसीईआरटी बेस्ड है,
बाकी 10% एग्जाम्पलर है और 5% कुछ भी हो सकता है। यही रेशियो होता है। तो अगर जो तुम देख रहे हो क्वेश्चन, मोस्टली एनसीईआरटी ऐसे ही होगा या इससे इजी होगा। tan पाई बाई 8। डी वाई बाई डी एक्स में डाला तुमने, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अच्छा ओके। डी वाई बाई डी एक्स tan पाई बाई 2 आ रहा होगा तुम्हारा, सॉरी थीटा, थीटा बाई 2 आ रहा होगा, tan पाई बाई 8। हाँ ठीक है ना, रहने दोनों, क्या फर्क पड़ता है। एक्स और वाई कितना आ रहा है? करेक्ट है। वाई पाई बाई 4 माइनस 1 बाई रूट 2, और डी वाई बाई डी एक्स tan पाई बाई 8। ठीक है, उसके फॉर्म में ये लोग ने बनाया, देखो एक्स और वाई पता है, डी वाई बाई डी एक्स पता है, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस वैसे छोड़ दिया है वो लोगों ने, दे हैव नॉट सिंप्लीफाइड और सॉल्व्ड इट फर्दर। दोनों नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में छोड़ा है, सो डोंट वरी अबाउट सिंप्लीफाइंग। यस, नॉर्मल भी। डिफरेंशिएशन करेक्ट आया ध्रुव। हाँ मैंने 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा उसी टाइम पे मैंने पाई बाय 4 डाला। ठीक है ना, तो भी हो जाएगा ना, करने की जरूरत नहीं। बट उससे tan थीटा बाई 2 आ रहा है, नहीं पाई बाई 8 ही आएगा सीधा, तेरा पाई बाई 8 आएगा। ओके नो प्रॉब्लम, सही है। सही है। अभी तक तो काफी इजी है क्वेश्चंस, मतलब चैलेंज है बट इतना नहीं है। ओनली थिंग योर डिफरेंशिएशन शुड बी ऑन हैंड, मतलब ऐसा एकदम सारे फॉर्मूला प्लस मेथड सब क्लियर होना चाहिए एकदम। Find the equation of the tangent to the curve x square plus 3y is equal to 3, which is parallel to the line y minus 4x plus 5 is equal to 0. अगर दोनों का tangent से ये नॉर्मल हो जाएगा Exactly. Which is parallel to the line. तो सेम रहेगा दोनों Slope. हाँ, so basically
y माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 which you equate with y is equal to mx plus c. So slope is 4, that is dy by dx. So you already got dy by dx. You have the equation of the curve. Find So directly x और y find करेंगे x और y फाइंड कैसे करोगे? slope तुम्हें तुम्हें dy by dx का फॉर्मूला निकाल के 4 से इक्वेट करना पड़ेगा, फिर उससे तुम्हें मिलेगी वैल्यू x की, और x की वैल्यू इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में डाल के y निकाल लो, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x minus 6 अच्छा, तो y निकाल x आ गया माइनस, 6 बस तो डाल दो इक्वेशन में, कर्व के इक्वेशन में। कंफर्म करूं -6 है कि नहीं? करेक्ट है, x -6 है। बस अभी x की वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, y निकालो, यू गॉट बोथ द पॉइंट्स एंड द स्लोप। स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या हो गया ध्रुव? इक्वेशन ऑफ कर्व है ना, वही तो करना है। इक्वेशन ऑफ कर्व से डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो और इक्वेट करो 4 के साथ। y भी आया कितना? एक मिनट चेक करते हैं, -11, करेक्ट हो गया। यस कैन सी।
10 करते हैं, बाकी मैं फिर पीडीएफ भेज दूंगा तुमको, ट्राई कर लेना, है ना। डिटरमाइन द पॉइंट्स, चाहिए कहीं का नहीं है क्वेश्चन। डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व where the tangents are perpendicular to the line, where the tangents are, मतलब दो टेंजेंट्स, दो या दो से ज्यादा। Determine the points on the curve x square plus y square is equal to 13 where the tangents are perpendicular to this line, मतलब इस लाइन के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमारे टेंजेंट का स्लोप होगा, मतलब dy बाई डी एक्स तो मिल ही जाएगा। देखो 3x minus 2y is equal to 0, so 3x is equal to 2y, so 3x by 2 is equal to y, so y is equal to 3 by 2x plus 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो slope is equal to 3 by 2, so therefore dy by dx is equal to minus 1 by m, which is minus 2 by 3। बस अब डिफ्रेंशिएट कर लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 को। माइनस एक्स बाय वाई, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस एक्स बाय वाई। वाई नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू सर वो मैंने उसका पहले डिफरेंशिएशन किया था सर एक्स बाय वाई 2 बाय 3 आएगा ही 3x इज इक्वल टू 2y है तो x बाय वाई 2/3 आएगा। ढूंढना क्या है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व। अच्छा x और y की वैल्यू ढूंढनी है, तो डिफरेंशिएट करके क्या आया तुमको? डिफरेंशिएट करके होगा x इज इक्वल टू 2 बाय 3 x इज dy बाय dx की वैल्यू डाल x इज इक्वल टू 2y/3, फिर उसमें x और y कैसे ढूंढा तुमने? वही तो ढूंढना है ना अपने को। ये रेशियो है, करेक्ट 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 करेक्ट, they have given the relation between x and y over here only, so we can write 3x is equal to 2y or x by y is equal to 2/3, this is what you are talking about na. Now tell me what is dy by dx? माइनस 6 अपॉन 13 माइनस 6 हाँ ओके कैन, हाँ हाँ खुला है, मैंने खोल दिया। वो नहीं, इसको डिफरेंशिएट करके माइनस एक्स बाय वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तभी तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा y, सॉरी x। का वैल्यू माइनस 1 बाय एल है, हाँ यही है ना वैल्यू, बट उसको इक्वेट तो करना पड़ेगा ना इसको डिफरेंशिएट करके। सर उसको डिफरेंशिएट करके मेरे को माइनस एक्स बाय हाँ ओके, इसका इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 की बात कर रहे हो तुम, उसको डिफरेंशिएट करके कितना आया तुम्हें? माइनस एक्स बाय अब ये गड़बड़ है, बिकॉज माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस 2/3, एक्स बाय वाई इज 2/3, हाउ यू विल फाइंड? सर मुझे लगता है एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू हो जाएगा नीचे वेरिएबल माइनस एक्स के टर्म्स में। हाँ वही बोल रहा हूँ, नहीं एक्स के टर्म में नहीं चाहिए अपने को।
वी डोंट वांट इन एक्स टर्म्स बाबा. एक मिनट, एक मिनट. लेट्स सी. और वो भी क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर. सर Minus x by y, but the tangents are perpendicular to this, so minus x1 by y1 times minus 3 by minus 2. क्या लिखा है ये? सर उनका प्रोडक्ट माइनस होता है. किसका प्रोडक्ट? सर वो वाले इसके 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 नेगेटिव रेसिप्रोकल. ठीक है, ठीक है. इससे ये मिला उनको, ये हमको भी मिला हुआ है. सर वो लोग ने y की या फिर x की वैल्यू डाल के इक्वेशन में डाल दिया. ओ, मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या हो सकता है. देखो, एक्चुअली हमें यहीं से एक आइडिया तो आ ही गया है एक्स और वाई का क्या है रिलेशनशिप, जो हमने डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करके कंफर्म कर लिया. तो बेसिकली एक्स इज इक्वल टू 2y/3 हो गया. हाँ, इसको यहाँ पे डालना है. सर वहाँ पे क्या? ये x² + y² इज इक्वल टू 13 में, क्योंकि हमें कर्व पे पॉइंट चाहिए, उस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है. वो लाइन तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का इक्वेशन है वो, हमें वो कर्व के पॉइंट चाहिए. तो x की वैल्यू हम लोग क्या डालेंगे? 2y/3 द होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 13. इससे हमें y मिलेगा, और वो y की वैल्यू वापस हम उस इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू ढूंढेंगे. यहां पे हम अटक रहे थे. सो आई वॉज थिंकिंग कि डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली x की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं, लेकिन एक रिलेशन मिला. सर वो 2/3 उनका रेशियो है. तो x और y की वैल्यू आ गई. आ गई. टेल मी फर्स्ट y प्लस माइनस 3 and x. प्लस माइनस 2. When x is 2, y is 3. When x is minus 2, y is minus 3. So the points are 2, 3 and minus 2, minus 3. चेक करो तुम लोग वापस, जो लोग कर रहे हैं. करेक्ट है. अब y की दोनों वैल्यू x² + y² इज इक्वल टू 13 में डाल के x की दो वैल्यू ढूंढो 1/1. तो वो जो दो पेयर मिलेगी ना तुम्हें, दोज आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स at which the tangents are perpendicular to the given line. तो उनका x कैसे? ये माइनस 2016. Show that the equation of normal at any point t on the curve given by x is equal to 3 cos t minus cos cube t and y is equal to 3 sin t minus sin cube t is this. Don't be confused by the question. You simply have to differentiate x with respect to t, y with respect to t, dx by dt, dy by dt will give you dy by dx. dy by dx is the slope of the tangent, minus 1 upon dy by dx will be the slope of the normal, and we have to find the equation of the normal. We have to prove that equation of normal is this, so we have to find the equation of the normal. But at any point t बोला है वो लोगों ने,
तो हाँ, जहाँ पे x और y है उसकी जगह t रखना है, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है एट एनी पॉइंट t ऑन द कर्व। हाँ, मतलब x और y t के टर्म्स में, y माइनस y1 लेते थे तो y1 को क्या रखें? t, t रखें। और x1 को भी t एट एनी पॉइंट t। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, या ये जो वैल्यू दी है जो x और y की t के टर्म्स में ही है ना, वो वही रखेंगे। सो ये जो x और y की वैल्यूज है, दोज आर एक्चुअली x1 एंड y1 which are to be used for making the equation of normal. Correct, not t. dy by dx आया, चेक करते हैं। माइनस कॉस क्यूब टी बाय साइन क्यूब टी, माइनस कॉट क्यूब टी। कोई भी डाउट है यहाँ पे देख लेना। स्लोप नॉर्मल का टेंजेंट दिया जाए। करेक्ट, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो जाएगा नॉर्मल का। उसमें y माइनस y डैश वो वाला कौन सा रहेगा? हाँ, तो उसमें y डैश और x डैश जो क्वेश्चन में दिया है ना तुमको, वही लेना है। x और y दिया है ना हमें एट द पॉइंट, बताता हूँ। ये है तुम्हारा x डैश और y डैश। जब कर्व को डिफाइन करते हैं ना, वी कैन ईदर डिफाइन अ कर्व बाय एन इक्वेशन और बाय अ पॉइंट ऑन द कर्व। दीज टू x एंड y आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो y डैश और x डैश की जगह ये डालना है तुम्हें। प्लीज ये देख लो ध्रुव, कौन सा इक्वेशन? हाँ, ये नॉर्मल का इक्वेशन है हमारा, ये बनना चाहिए इक्वेशन इन दी एंड, बट उससे पहले dy बाई डी एक्स करेक्ट आना चाहिए।
करेक्ट, करेक्ट है। अब ये लास्ट जो इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन है उसमें थोड़ा टाइम जाएगा शायद, बिकॉज यू पुट द पॉइंट्स हियर in the place of y dash x dash and then you simplify, open the bracket or whatever. ये लोग ने tan नहीं लिया है, sin और cos के टर्म्स में सिंप्लीफाई किए, and then they have used this in the place of cos square t minus sin square t, the formula कितना होता है cos square theta minus sin square theta, 2 sin theta cos theta, cos 2 theta, I'm sorry, cos 2 theta. Are you sure cos 2 theta? यहाँ पे cos 2 theta है, यहाँ पे cos t है, सर वो sin 2t हो जाएगा कौन सा? सर sin t cos t, जब 2 sin t cos t होता है तो फिर वो sin 2t हो जाएगा। Correct. 2t Correct, 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 correct. This is the final part of the proof. सेकेंड स्टेप में काफ़ी सिंप्लीफाई किया है। हाँ सर, क्योंकि sin 2t cos t तो वो भी 4t बना दिया, वो वाला कौन सा फॉर्मूला है ये? 2 sin theta cos theta sin 2t। अच्छा अच्छा, ये इधर बात कर रहे हो? नहीं, मैं ऊपर बात कर रहा था। ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ए क्यूब माइनस b क्यूब का ये क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन किया ना यहाँ पे, सर नहीं वो sin cube t cos को t इधर लाया है, और व्हाट अबाउट दिस? सर दोनों साइड sin cube t cos cube t कट हो जाएगा दोनों साइड, और फिर दोनों एक दूसरे को शिफ्ट किया। अच्छा, हाँ, साइन क्यूब टी कॉस क्यूब टी दोनों साइड में कट हो रहा है, और y cos क्यूब टी माइनस एक्स साइन क्यूब टी को एक साइड रखा है, और बाकी सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई किया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मीन्स यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट एंड देन रीअरेंज एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, कल फिजिक्स 2:30 ये मैं भेज देता हूँ तुमको भी।